سید الانبیاء والمرسلین فاتح لمن سبق بالفاتح لمن خلق المول للحق بالحق بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المجرمين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم صلوات على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. سامعین گرامی قدر ذاکری لائن میں میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کا نام علامہ علی حسن کاظمی ہے، اور جنہوں نے ہمیں یہ تربیت دی ہے کہ بیٹا ممبر حسین پر یا قرآن ہی چپڑنا ہے یا مصطفیٰ دے فرمان ہی چپڑنا ہے. سامعین گرامی قدر مجھ سے پہلے بہت اچھے ذاکرین اپنے اپنے انداز سے عقیدتوں کے پھول نچھاور کر گئے ہیں. میرے بعد بھی بہت اچھے ذاکرین تشریف فرما ہیں، لیکن میں بھی کوشش کروں گا کہ اپنے مقررہ وقت کے اندر کچھ دیر کے لیے آپ حضرات کی جھولیوں میں آل محمد کی فضیلتوں کے موتی نشاور کرنا چاہوں گا، لیکن بدلے میں اتنی منت ضرور کروں گا کہ جتنی دیر میں گفتگو کروں مجھے اس بات کا احساس دلاتے رہیے گا کہ میرا خطاب آل محمد کے ماننے والوں سے سوچنے والوں سے نہیں. سامعین گرامی قدر یاد رکھے گا موتی ہوتا ہی ہوئی ہے جو آل محمد کی فضیلت کا ہو. اور یہ قربانی بھی گزر گئی ہے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں جی ذوالجناح کی پوجا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ذوالجناح کو جانور کہہ کر منہ ٹیڑھا کرنے والے جانور کا احترام فرما رہے ہیں. ہم سے یہ کہنے والے کہ یہ وہی گھوڑا تھوڑی تھا جس پر امام حسین بیٹھا کرتے تھے، میں پوچھتا ہوں یہ وہی ڈبا تھوڑی تھا جو جنت سے آیا تھا. لائے تو آپ بھی بکر منڈی سے ہیں اور بڑا دیکھ بھال کر رہے ہیں، بڑا ٹٹول کر رہے ہیں کہ سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، کان کٹا ہوا نہ ہو، پاؤں سے لنگڑا نہ ہو، آنکھ سے کانا نہ ہو. آپ پورا سال گوشت کھاتے ہو، کبھی آپ نے کسائی سے نہیں پوچھا یہ جو گوشت دے رہے یہ بکرا اندھا تھا، لنگڑا تھا، لولا تھا، سینگ پورے تھے کہ نہیں؟ آخر مسلمان نے اسے پوچھتے ہوئے اسے ایک ہی دمبے کے لیے اتنی تحقیقات کیوں؟ تو جواب آئے کہ یہ اس کی جگہ آ رہا ہے جو بے عیب تھا. 1400 سال گزر گئے، ہم بھی تمہیں یہی سمجھاتے آ رہے ہیں کہ بے عیب کی جگہ بے عیب ہے. اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو، اس کی رسی کو بھی زور سے نہیں کھینچ سکتے. وہ جو کہتے ہیں ذوالجناح کو گلی میں نہ لے کر آؤ، ان کے بچے گلی گلی میں دمبے پھراتے ہیں. بچے بڑے پیار کرتے ہیں بکریوں سے، بکروں سے، لیکن جن کے گھر میں پودے ہوتے ہیں وہ بیچارے جلدی نہیں کرتے خریدنے میں، کیونکہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ بکرا باغ کا دشمن ہوتا ہے. وہ بابا یہ نہیں دیکھتا کہ باغ کا مالک کون. اب جانور جو ہوا، جانور کو کیا پتا کہ مالک کون؟ سامعین گرامی قدر، اور یہ اکلوتا نبی ہے جس کی اللہ نے یاد منوائی. ہمارے نبی آدم بھی ہیں، آدم کی یاد میں پتلا نہیں بناتے. نوح بھی ہمارے نبی ہیں، نوح کی یاد میں کشتی پر نہیں بیٹھتے. کبھی اللہ نے حکم نہیں دیا تھا کہ ایک مرتبہ سال میں کشتی پہ چڑھ جایا کرو تاکہ نوح کی یاد ہو جائے. موسیٰ کی یاد میں پہاڑ پہ نہیں چڑھتے، عیسیٰ کی یاد میں پرندے نہیں بناتے. آخر ابراہیم کی یاد کیوں؟ ابراہیم کی یاد کیوں؟ امیر ہو تب مناؤ، غریب ہو تب مناؤ. زیادہ امیر ہے وہاں جا کے منائے جہاں ہوئی تھی. ملنگوں کی طرح 2 کپڑے پہنو، جن کے 2 چادریں، لیکن ان کا رنگ سفید ہونا چاہیے. دنیا میں آؤ تو کپڑوں کا رنگ سفید، دنیا سے جاؤ تو کپڑوں کا رنگ سفید، اللہ کے گھر جاؤ تو کپڑوں کا رنگ سفید. کوئی بے وقوف بھی ہوگا جو کہے گا یہ کوئی فرق نہیں، دنیا میں آؤ چچا حیدری جس کپڑے میں باندھا گیا اس کا رنگ سفید، کفن کا رنگ سفید. اللہ کے گھر جاؤ تو کپڑوں کا رنگ سفید. 4 پتھروں کے درمیان حاجی گھومتا ہے. کوئی بے وقوف بھی ہوگا جو کہے گا چاروں میں کوئی فرق نہیں. کوئی حاجی سوار مدینہ کا بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنی اپنی جگہ سے گواہی دے گا. 3 کو مارنا پڑتا ہے، 1 کو چومنا پڑتا ہے. پتہ چلا رحمان کی نشانی اور ہوتی ہے، شیطان کی نشانی اور. سامعین گرامی قدر، محمد مصطفیٰ نے کہا ایک ہجرت کی رات آئی. محمد مصطفیٰ نے کہا علی سو جاؤ. بدلے میں مولا علی نے کہا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟
पूरी जिम्मेदारी से फिक्र कहना चाहता हूँ, पूरी मुकाबले उठाओ मौला अली की। क्यों, कब, अगर, मगर, चूंचे चनांचे के लफ्ज है ही नहीं। या अली ओहद फतह करो, जो हुक्म जनाब अली खैबर फतह करो, जो हुक्म आका जो या अली खंदक फतह करो जी। अभी गया ये एक हिजरत की रात है जब मोहम्मद मुस्तफा ने कहा या अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ, तू सोएगा तो मैंने बचना है। पलट के मौला अली ने कहा या रसूलल्लाह, क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? इमाम होता गया जो होने को होने से पहले जाने, यानी जिस बात का अली को पहले पता था वो मोहम्मद से पूछने की जरूरत क्या थी। मैंने कहा या अली आपको पहले पता था तो रसूल से पूछ क्यों रहे थे? आवाज़ें खामोश। मैं नबी से नहीं पूछ रहा था, नबी से पूछ कर उम्मत को बता रहा था कि एक हिजरत की रात को मोहम्मद की जान को था खतरा। जान सोने वाले ने बचाई है, रोने वाले ने नहीं बचाई। जान सोने वालों ने बचाई है, रोने वालों ने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि मैं बेटे को लिटा रहा हूँ, ज़िबा कर रहा हूँ। सुबह बेटे को कहते हैं मैंने ख्वाब देखा मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। बेटे ने कहा आपको जो अम्र हुआ है वो आप पूरा करें। चाचा हैदरी, बाप कह रहा था ख्वाब है, बेटा कह रहा था अम्र है। इंशाअल्लाह मिनल साबिरीन, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। इस्माइल के सामने मौत आई, उसने कहा इंशाअल्लाह मिनल साबिरीन, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। एक हिजरत की रात आई, मोहम्मद ने कहा अली सो जाओ। सबसे पहला सजदा शुक्र मेरे बादशाह अली ने किया। इससे पहले सजदा शुक्र ना आदम ने किया, ना इंसान ने, ना किसी जिन ने, ना किसी फरिश्ते ने। सबसे पहला सजदा शुक्र किया मेरे बादशाह अली ने। जाओ 1 करोड़ पर्चे कर दो। सब्र होता है मुसीबत पर, शुक्र होता है नेमत पर। बाप बेटों को लेकर चला ज़िबा करने के लिए। रास्ते में शैतान ने 3 नाके लगा दी, क्योंकि कुर्बानी शैतान को अच्छी नहीं लगती। सबसे पहले चला इस्माइल के साथ, आगे चल के कहता है ज़िबा कर देगा। उसने कहा अल्लाह का हुक्म है। कहता है अब बूढ़ा हो चुका है, इसका दिमाग ठीक काम नहीं करता। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। शैतान दौड़ा और दौड़ते दौड़ते पूछता आपने मुझे कैसे पहचाना? फरमाया जो नबी के दिमाग में हमला करे शैतान होता। फिर ये हजरत इब्राहिम के पास चले गए। मैं भी ख्वाब देखता हूँ, बहुत देखता हूँ, जो देखता हूँ वो करता नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। शैतान दौड़ा और दौड़ते दौड़ते पूछता आपने मुझे कैसे पहचाना? कहा जो अपने आप को नबी के बराबर समझे वो शैतान होगा। अब आप मेरी पिछली सारी बातें भूल जाएं, लेकिन इस फिक्रे में बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। अब इसने तीसरा हमला किया नबी की बीवी पर, और यहाँ इस शैतान को पक्का यकीन था कि इधर मैं जरूर कामयाब हो जाऊंगा। अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपीरियंस, तजुर्बे की बुनियाद पर गया नबी के घर, दस्तक दी, अंदर से जवाब भी हाजिर है। फरमाया कौन, क्या नाम बताए? गुस्से से कहता है हमदर्द। ना देखो तो हमदर्द। फरमाया कैसे आए हो? बीबी बेटा कहाँ है? बीबी ने कहा वो अपने बाप अपने वालिद के साथ दावत पर गए। गुस्से से कहते दावतों में छुरी साथ लेकर जाते हैं, ज़िबा कर देगा। मुतमईन लहजे से बीबी हाजिरा कहती है मालिक है, कहते है तू अच्छी माँ है, तुझे बेटे की जिंदगी की परवाह कोई नहीं, जल्दी घर से निकल। और बच्चा बच्चा, चाचा हैदरी तवज्जो मेरी तरफ रखी, घर से निकल, बच्चा बच्चा घर से निकल, बच्चा बच्चा। बीबी हाजिरा ने फरमाया अल्लाह हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। शैतान दौड़ा, दौड़ते दौड़ते पूछता है तू तो अंदर खड़ी थी, तूने मुझे कैसे पहचाना? कहा जो नबी की बीवी को घर से निकाले वो शैतान है। जो नबी की बीवी को घर से निकाले वो शैतान होता है। बस सामीन अकराम कदर, मेरे बाद भी बहुत अच्छे, उनको इंतजार ना करवाऊं। मैंने शुरू में जुलजना का जिक्र किया था, मैं कोशिश करूंगा थोड़ी देर के लिए, चाहता हूं कि इसी जुलजना के 2-4 आपको दर्द सुना दूं। करनाता शहर है, रसूल अकरम कहते हैं अली तूने मेरे लिए बहुत जंगें की हैं, मेरा दिल चाहता है कि एक जंग मेरे हुसैन के लिए भी कर,
एक जाने मेरे हुसैन के लिए कर जी आका का घरनाटा जा शाह फजल के पास, वहां पे एक बादशाह है जिसका नाम है शाह फजल का, उससे जंग कर जाके अली गए, सहाबा को ना लिया, रास्ते में दरिया का किनारा आया, जैसे ही अली इस पार आए अली ने सब कश्तियां जला दी। वजीरों ने देखा कहा शाह फजल ये जो बंदा आ रहा है ये वापस जाने का इरादा नहीं रखता, इस बेहतर ये है कि इसके हाथ में बैयत करें, शिकस्त कबूल कर ले। अली जैसे ही गए इन्होंने बैयत की, 10 दिन अली वहां में मान रहा। 10 दिन बाद जब आने लगे ना, शाह फजल कहता है मौला अगर आप चाहें तो मेरे पास एक तोहफा है वो मैं आपको दे दूं। मौला ने कहा हाँ तोहफा लाओ। देखा क्या लाया, एक घोड़ी है मुर्शिद जिसे 10 आदमियों ने इधर से पकड़ रखा है, 10 आदमियों ने इधर से। शाह फजल कहता है मौला इस पर कोशिश की है सवारी करने की, लेकिन कोशिश सवारी नहीं कर सका, मौला आप ये कबूल करें। मौला ने घोड़ी ली, चलने लगे, घोड़ी ने इनकार नहीं किया। अल्लाह जाने मुर्शिद सर पे कदमों में सर रख के उसने क्या फिक्र का। मौला पीछे मुड़कर कहते शाह फजल इसका कोई बच्चा भी है जिसकी उम्र 5 माह है? कहते हाँ मौला वो है सही लेकिन आपके काम का नहीं है। मौला ने कहा क्यों? कहा वो पूरा दिन धूप में बैठा रहता है, वो ना कुछ खाता है ना पीता है। मौला ने कहा हाँ हम उसी बच्चे के लिए आए, तुम ऐसा करो वो बच्चा मुझे दो। तारीख ने उसका नाम मुर्तजिज बताया। मौला ने मुर्तजिज लिया, मदीने आए, पहला इस्तकबाल रसूल कर रहे हैं। इस तरह का इस्तकबाल के गिरे बाग जाके मुर्शिद आस्तीनें खुली हुई, नंगे पांव अली के गले नहीं लगे, रसूल दौड़े मुर्तजिज के गले में बाहें डालकर कहा मुर्तजिज आज के बाद मेरा हुसैन तेरे हवाले, आज के बाद मेरा हुसैन तेरे हवाले। अज़ादारो रसूल ने अपने हाथ से चबूतरा बनाया, मुर्तजिज को वहां रखा, दाना भी अपने हाथ से देते, नहलाते भी अपने हाथ से। इधर सैयदा ज़ैनब इमाम हसन हुसैन को खाना खिला रहे, ऐसे ही दरमियान में मुर्शिद मेज है, इधर मौला हसन, इधर मौला हुसैन, इधर सैयदा ज़ैनब, इधर सैयदा कुलसूम। और खाना खिलाते खिलाते कहती है भैया सुना बाबा एक घोड़ी लेकर आए हैं जिसका नाम मुजल्ली है। भैया बड़ी बात उस पर किसी ने सवारी नहीं की, लेकिन भैया दुख की बात यह है कि उसका एक बच्चा भी है जो सारा दिन धूप में बैठा रहता है, वो ना कुछ खाता है ना पीता है। जब कहा ना मुर्शिद ना कुछ खाता है ना पीता है, मौला हुसैन नंगे पांव अस्तबल की तरफ दौड़े, मुर्तजिज के सामने खड़े हुए, मुर्तजिज खड़ा हो गया, कहा आज से खाना पीना छोड़ दिया, मुर्तजिज 10 मुहर्रम तो भी दूर है, जिंदा रहना है खाना तो पड़ेगा, मुर्तजिज जिंदा रहना है खाना पड़ेगा। वापस मस्जिद नबवी में आते हैं, वापस मस्जिद नबवी में आते हैं, कहा नाना मैं सवारी करना चाहता हूँ, मैं सवारी करूंगा। मुस्तफा ने कहा मेरी जिंदगी में क्या है? कहा नाना मैंने सवारी करनी। कहा किस घोड़े पे? कहा मुर्तजिज पे। मोहम्मद ने कहा हुसैन मेरी जिंदगी में किसी और घोड़े पे सवारी कर ले, मेरे अस्तबल में ऐसे घोड़े मौजूद है जिनके सुमों से उड़ती हुई धूल की कसमें अल्लाह कुरान में खाता है। कहा नाना नहीं मैंने मुर्तजिज पे सवारी करनी है। इधर से अली ने पकड़ा, इधर से मोहम्मद ने। हुसैन सवार नहीं होते। कहा क्यों नहीं होते? कहा नाना आज तो करवा रहे हो, 10 मुहर्रम को कौन सवार करवा? नाना आज तो सवार करवा रहे हो, 10 मुहर्रम को कौन सवार कराएगा? इधर मौला हुसैन सवार हुए, बीबी ज़हरा ने देखा, कहा आईना आईना फिजा, हुसैन को कहो मेरे सैन में। हुसैन की सवारी बीबी के सैन में आई, बीबी ने अपनी चादर ततहीर में जौ खिलाई, दाने खिलाए, और उसके कान में एक जुमला कहा मुर्तजिज तूने मेरी चादर ततहीर में दाने खाए, तू मेरा मकरूज हो गया, याद रखना जब हर कोई हुसैन को छोड़ कर जाए तू छोड़ कर ना जाना, मेरा हुसैन तन्हा रह जाए। अल्लाह अल्लाह।